Good afternoon, students. The last topic was HRD strategies. Now, Unit 4. In Unit 4, we have this topic of training and development need, the need identification. So, we will continue with this. The first definition has been given by Edwin Flippo. Training is the act of increasing the knowledge and skill of employee for doing a particular job. Very simple and very simply understood. That by the increase of your skill and knowledge, you are more effective employee, and this is what the training does. Now, training is an organized activity for increasing the technical skill of the employees to enable them to do a particular job efficiently. Technical does not mean machine only. Technical knowledge may be at the managerial level also, wherever it is required as per the profile of the job. So training actually enhances the skill and makes the employee do a particular job efficiently, right? That is within time, and the job is also done perfectly. So this is what the training does. In other words, training provides the worker with facility to gain technical knowledge and to learn new skill to do specific job. This is what it's saying. It gives them the technical knowledge and to learn new skills to do a specific jobs. So training can be imparted to now at the technical level, at the shop floor level. What happens? A particular machine needs to be operated. Now training for that is given to the workers. So it is a very specific job, and for which a training can be given. Training is equally important for existing as well as new employees, because existing employees, they have to also upgrade to the new technologies and all. So they should also get training, and of course the new employees, those working after the orientation is done, they are given the training so that they are perfectly fit for the job requirement in a particular organization. It enables the new employees to get acquainted with their jobs and also increase the job related knowledge and skill. So it also enables the new employees to get acquainted with the job. Obviously, orientation training, that which I just talked about, that can be so that he gets well versed in what he is supposed to do in a particular job. So orientation training can be done, and also increases the job related knowledge and skill. Obviously, एक नया बंदा जो आता है उसको कई सारी चीजें नहीं पता होती हैं, उसे पता हो जाती हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग, और वो अपना काम अच्छी तरह से एफिशिएंटली कर पाता है. Now, objective of the training, these are the objectives: to provide job related knowledge to the worker. Obviously, हर आदमी का जो जॉब रिलेशन है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसे दी जाती है एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग. टू इम्पार्ट स्किल्स अमंग द वर्कर्स, राइट? To impart skills among the workers systematically so that they may learn quickly. Systematic का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर एट रैंडम किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी, बट सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी तो वो उस चीज को बहुत आसानी से पकड़ेगा एंड ही विल लर्न इट. थर्ड है टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर टुवर्ड फेलो वर्कर, सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जब आप ट्रेनिंग करते हैं आप तो खुद नॉलेजेबल होते ही हैं, ठीक है? आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज चेंज होता है, ठीक है? आप दूसरे वर्कर्स के प्रति भी संवेदनशील होते हैं. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई स्किल एक्वायर करी है, आप उससे शेयर करना चाहेंगे, ठीक है? सुपरवाइजर की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, यू विल बी मोर वैल्यूड बिकॉज नाउ यू आर अ बेटर ट्रेन्ड पर्सन, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी कदर करेगा. क्यों? क्योंकि आपकी स्किल एबिलिटी नॉलेज एनहेंस हो रही है ट्रेनिंग के द्वारा. To improve the productivity of the workers and the organization. Obviously, a more efficient worker will contribute to the more productivity of the organization, and thus the organization also gets benefited. To reduce the number of accidents by providing safety training to the workers. ये बहुत जरूरी है बच्चों. जो लार्ज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ बहुत तरह तरह की मशीनें और तरह तरह के टेक्निकल काम होते हैं, तो वहाँ एक्सीडेंट्स भी होते हैं. तो अगर बेटर ट्रेन्ड पर्सन होगा, वो एफिशिएंटली हैंडल करेगा मशीनों को, टेक्निकल चीज़ों को, तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे. टू मेक द वर्कर हैंडल मटेरियल मशीन इक्विपमेंट एफिशिएंटली एंड दस टू चेक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एफिशिएंट वर्कर होगा जो वेल ट्रेंड होगा, वो आपकी वेस्टेज नहीं होने देगा और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा. टू प्रिपेयर वर्कर फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब बाय इम्पार्टिंग देम एडवांस स्किल्स. भाई
हर प्रमोशन किसी ना किसी तरह से इस चीज का एवेल्यूशन करती है जब प्रमोशन होता है कि बंदे में ऐसी क्या खास बात है कि हम इसको प्रमोट करें। तो अगर बंदा ट्रेंड है, उसने कोई पर्टिकुलर जैसे एक सर्टिफिकेट वाला ट्रेनिंग किया हुआ है उसने, तो नेचुरली वो प्रमोशन के काम भी आएगा। क्यों? क्योंकि तब ये देखा जाएगा कि किस किस लोगों में ये स्किल सेट्स हैं, ये स्किल लेवल्स हैं, और बंदे ने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है, तो नेचुरली इट विल ऐड एन एडवांटेज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो प्रमोशन या हायर लेवल जॉब्स में इसका काफी खास महत्व है। इट्स हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, राइट। देन coming to the training need, that was objective. Now need, the need for training arises due to number one, higher productivity के लिए it is essential to increase productivity and reduce cost of the production by meeting competition in the market। हमें cost को reduce करना है और productivity बढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हम प्राइसेस ज्यादा वेरी नहीं कर सकते, बट यस हम रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट आवर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज एनहांस्ड। कॉस्ट को कंट्रोल करना, और अगर हमारे बंदे ट्रेंड है, एफिशिएंट है, तो वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे वेस्टेज को मिनिमाइज करते हुए। इफेक्टिव ट्रेनिंग कैन हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय इंपार्टिंग द रिक्वायर्ड स्किल्स। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। Quality improvement, the customer have become quality conscious and their requirement keep on changing. To satisfy the customer, quality of product must be continuously improved through training of the workers। एक better trained person एक better output of products जरूर देगा, ठीक है। तो क्वालिटी से भी जुड़ा हो गया। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो तभी दे सकता है जब क्वालिटी पे उसकी पकड़ हो और वो अपना काम इस प्रकार से करे कि प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। रिडक्शन ऑफ लर्निंग टाइम, systematic training through trained instructor is essential to reduce the training period। If the workers learn through trial and error, they will take a longer time and even may not be able to learn right method of doing। ट्रायल और एरर से जो सीखता है आदमी, अब ठोकर खा के सीखना जिसे कहते हैं, उसमें समय लग जाता है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। एक परफेक्टली वेल ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बंदे को अच्छी तरह से ट्रेन भी करता है, और जो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं वो भी एक्वायर हो जाते हैं इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ट्रेन्ड वर्कर्स कैन हैंडल द मशीन सेफली। दे ऑल्सो नो द यूज ऑफ वेरियस सेफ्टी डिवाइसेज इन द फैक्ट्री, दस दे आर लेस प्रोन टू इंडस्ट्रियल। यह बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक बेटर ट्रेन पर्सन चीजों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, मशीन को सेफली ऑपरेट कर सकता है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी वो ट्रेंड होता है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होना भी होता तो उसको हम डिले कर सकते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। Reduction of turnover and absenteeism. Training creates a feeling of confidence in the minds of the workers. It gives them the security at the workplace. As a result, labor turnover and absenteeism rate are reduced। भाई बंदा कॉन्फिडेंट है, अपने काम को मन लगा के कर रहा है, कॉन्फिडेंट बंदा अपने काम में मन लगा के कर रहा है, तो नेचुरली वो एब्सेंट भी कम होगा, क्योंकि वो अपने काम में इन्वॉल्व है। जो भी बंदा काम में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो एब्सेंट कम से कम करेगा, वो अपने काम को डेडिकेशन के साथ फुलफिल करने की कोशिश करेगा। और जिस आदमी को ढंग से काम नहीं आता है तो वो अवॉइड करने की भी कोशिश करता है, तो इसलिए वो कभी छुट्टी लेगा, कभी कोई दूसरा बहाना बनाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। टेक्नोलॉजिकल अपडेट, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। द वर्कर्स मस्ट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस में जब एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दस ट्रेनिंग शुड बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू अपडेट द एम्प्लॉयज इन द न्यू मेथड एंड प्रोसीजर्स। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन नए टेक्निकल चीजें अपनाता जाता है, नई टेक्नोलॉजी लाता जाता है, लोगों को ट्रेनिंग मिलती जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपग्रेड हो ही रहा है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहा है, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। सो टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होता रहता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ट्रेनिंग कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। इट डेवलप्स स्किल अमंग वर्कर्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हैंडलिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब्स। ट्रेनिंग आपको एफिशिएंट बनाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करता है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, वेस्टेज एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। बेटर ट्रेन पर्सन होंगे तो उनको सुपरविजन की कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनको काम अपना अच्छी तरह से आता है, और वेस्टेज भी वो कम करेंगे और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी कम होंगे। It also helps them in increasing productivity and quality, which are the cherished goal of any modern organization। दो ही चीजें हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादन बढ़े, और साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे, क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए। तो ये दो ही चीजें इफेक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा बनती है अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइज प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ
training need, and of course these are the main reasons. So we end our topic over here. We will continue in the next lecture.